Hello students, my name is Satya Prakash and today we have rank 15 of UPSC CSE 2023, Kunal Rastogi with us. Congratulations Kunal for your success and welcome to the session. Thank you, sir. So Kunal is a graduate in civil engineering from BITS Pilani. This was his third attempt in which he has got this exceptional rank of 15. One thing significant about his selection is that his score in GS2 is one of the country highest. He has got 134. Now, in the next 15 to 30 minutes, we'll be talking about the entire journey of Kunal with respect to the civil services preparation and some of the limited failures that you have seen. We'll be talking about that also, because more than success, I believe looking at the failure is also important, because that's how you learn from the process. But the first question to you, Kunal, would be in the reverse manner. The first question would be that now you are selected and you are going to get into Indian Administrative Service. Sir. What are your plans? What are the objectives that you want to implement on ground? With what expectation you are entering into service? Sir, honestly speaking, I don't have any expectations. I think having too much expectations about things that you know too little about comes with lot of frustrations. So I want to go with an open mind. और जो परिस्थिति होंगी वहाँ पे, जो सर्कमस्टांसेस होंगे, जो डिमांड होगा पब्लिक का, उसको मैं अपने एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट पूरा करने की कोशिश करूँगा. तब देखेंगे उसको, राइट, क्योंकि बहुत सोच के जाने पे भी एंड सर, इफ यू मुझे तो ये लगता है कि अगर मैं जैसे हेल्थ या एजुकेशन का एक एजेंडा लेके गया और मुझे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हुआ जहाँ हेल्थ और एजुकेशन इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर बट देयर इज सम थर्ड थिंग, तो फिर मैं तो अपने जॉब को जस्टिस नहीं कर पाऊंगा. तो इसलिए आई हैव अ एजेंडा कि जो भी काम करना है अच्छे से करना है, पूरे दिल से करना है, जो वहां से डिमांड आएगा उस बेसिस पे करना है. ठीक है. इंटरव्यू की बात करते हैं कुणाल. यू हैव वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू. ही हैज गॉट 193 एंड व्हाई आई एम emphasizing on this mark of 193 because in his first attempt when he gave the interview he got 166. 160, sir. 160. So 160 is a low score, and I think that was the reason that you were not selected, because you missed the final cutoff marks just by 23 marks. Okay, now what improvement, what changes you made for your interview preparation this time so that a jump was from 160 to 193? I understand that objectively it is very difficult to tell that what worked for you, but what was the change in the strategy? Because you must have learned that interview is something that held you back in the first attempt. So what different strategy you took this time? So I don't think I had the time to plan a strategy because the interview timetable was announced on 18th of December, I think. Okay. And my interview was on the very first day. Okay. That is 2nd of January. From the day interviews were starting? Yeah. उस दिन So से उसी दिन से शुरू हो गया, पहला स्लॉट पहला दिन. और मैं तो एकदम ही घबरा गया था. मुझे लगा ये अटेम्प्ट भी मेरा गया कि, और एक और खतरा मुझे उस समय लग रहा था कि इंटरव्यू बोर्ड शायद इतने जल्दी होगा तो शायद उतने मार्क्स ना दे जितना बाद में देता है, क्योंकि मैं प्री कंसीव नोशन था फर्स्ट अटेम्प्ट से. होता है कि इनर्शिया रहता है पहले बोर्ड के. बिल्कुल सर. तो फिर मैंने तो सोचा कि अब स्ट्रैटेजी तो क्या ही बनाऊं, टाइम ही नहीं बचा है. तो मैंने बस ये सोचा कि मैं इस बार डैफ एनालिसिस कर लेता हूँ, और वो मैंने किया और 2-3 मॉक्स दे दिए मैंने. आई थिंक व्हाट वर्क फॉर मी दिस टाइम वाज प्रिसाइजली दिस कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई. आई थिंक आप जितना स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपने आप को, उतना आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी ओवरशैडो हो जाती है. तो आपको वो चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है. आपको अपनी ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाली पर्सनालिटी बोर्ड को दिखानी है और ऑनेस्ट रहना है, ना कि अपने आप से बल्कि बोर्ड से भी और अपनी अपब्रिंगिंग से. अगर आपने ऐसा दिखावट या एक मास्क पहन लिया तो वो बोर्ड वाले they will understand because they have so many years of experience, और आपको वो फिर डेट्रीमेंटल होगा जो मेरे साथ हुआ. दूसरा सर, मैंने एक बार ये काम किया कि मैंने किसी भी कोचिंग या किसी भी चीज का बात नहीं मानी. पिछली बार मैं कुछ मॉक्स में गया और उन्होंने बोला कि आपको अपना हैंड मूवमेंट नहीं करना, नेक मूवमेंट आपको रिस्ट्रिक्टेड रखना है, ऐसे आप ज्यादा कैजुअल लग रहे हो वैसे नहीं करना है. तो इस बार मैंने सोचा जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, बस इट शुड बी रिस्पेक्टिंग द ऑरा ऑफ द प्लेस दैट आई एम गोइंग इनटू, और ये एक फॉर्मल सेटअप है. बस इस रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे जो मुझे करना है मैं वो करूंगा. तो मेरे ख्याल से एक दूसरी चीज वो वर्क की. और तीसरा सर, मैंने ये हमेशा सोचा है कि दिल से आंसर देना है. फर्स्ट टाइम मैंने दिल से नहीं दिया था, दिमाग से दिया था. इस बार दिल से खेला तो शायद it worked for you. So आपने
अपने आंसर्स कैजुअल ही रखें, अनलाइक व्हाट इज टोल्ड कि कैजुअल नहीं रखना नहीं चाहिए, रखना कैजुअल चाहिए रखें. दिस इज ट्रू एंड वेरी राइटली ऑब्जर्व बाय यू कि जो लोग वहाँ पे बोर्ड में बैठे हुए हैं, देयर एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस इज मोर देन योर एंटायर एज. सो यू मे बिल्कुल बी ऑफ सर 25 या 26 ईयर्स, उन्होंने 30 साल गवर्नेंस में गुजारी है. सो इफ़ यू आर एट एनी पॉइंट लुकिंग डिसऑनेस्ट, यू आर they'll लुकिंग, recognize you. you're not respecting the dignity of that board, so they are going to recognize. बिल्कुल सर So that's why toppers say that never try to bluff the board. बिल्कुल सर They will immediately understand, and that is going to act in a very negative manner नेगेटिव for you. And what worked for you, I believe, Kunal, is that you gave answer straight from heart. Okay. सर जैसे एक क्वेश्चन में डिस्कस कर ही रहे हैं तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस स्टेट का एम्बेसडर या हाई कमिश्नर बनना चाहेंगे इफ यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी. Okay. सो मैंने जब बाहर आके लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने ये बोला था कि आपको अपना टेम्परामेंट देख के चूज करना चाहिए लोकेशन या फिर जहाँ सरकार चाहे वहाँ. लेकिन मैंने तो अपना एक ऑनेस्ट आंसर दिया. फर्स्ट आई स्टक विद चाइना अच्छा. बिकॉज आई सेड देयर वर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस एंड आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. हम्म. फिर मैं बोला दूसरा क्या होगा, तो इस पॉइंट में मैं थोड़ा अबैक हो गया था. लेकिन फिर मैंने कहा पाकिस्तान सर, तो उन्होंने बोला एक्सप्लेनेशन. मैंने कहा नो एक्सप्लेनेशन, द फर्स्ट वन इज माय एक्सप्लेनेशन ओनली. तो मुझे लगा कि वो शायद ज्यादा बोस्टफुल या कॉन्फिडेंट का वो आने लगा. बाकी बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि इस वजह से शायद 170 160 आ जाएंगे. लेकिन आई थिंक दे लाइक माय इनोसेंट कॉन्फिडेंस. See, going by too much of structure does not work. हाँ सर ये personality test है, the way we are talking right now. बिल्कुल So सर if there's a preconceived notion, कोई बताए कि आपको हाथ ऐसे करके बैठना है, okay, there's a one particular dressing way in which you have to dress. I think that is not going to दैट इज. work. So एक you और चीज सर feel that लास्ट टाइम मेरे independence. साथ हुआ था ये बहुत वो आई कांटेक्ट के साथ मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ. अच्छा. मेरी जनरली आदत है मैं जिससे बात करता हूँ उसके आई में देखूं हाँ. एंड आई जनरली टेंड टू इग्नोर अदर पीपल हम्म. बिकॉज एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस होता है कांटेक्ट. लास्ट टाइम मेरे को इंटरव्यू वालों जो मैं मॉक्स दिया तो उन्होंने इतना बोला कि सबसे आई कांटेक्ट करना है. हाँ. मैं सबसे ट्राई करता रहा तो जिससे बात करो उसी से नहीं हो पाया. इस बार मैं बोला ये भी नहीं करूंगा, जो मुझे नेचुरली अपने आई कांटेक्ट बनाना है मैं बस उसी से याद रखूंगा. क्योंकि वो पॉइंट दिमाग में हमेशा घूमता रहेगा कि द क्या move मोमेंट करना यू है. आर इनटू द स्किन आंसरिंग दैट क्वेश्चन, द मोमेंट यू रियलाइज कि आई हैव बीन टोल्ड look at everybody. Sir, and I believe this entire interview is only about what you are answering. Answer. It's not about कि बाकी external factors कि आप sweat कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Ignore all of this. Just focus on the clarity of your thought and the way you are answering. I think only that matters. And that's why I think 193 is a good score, because you have believed that what is right and you have answered that way. Right, sir. Now coming to the mains part, Kunal, आपने 2 बार मेंस दिया. मेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है एग्ज़ाम का. 86% जो वेटेज है वो मेंस के मार्क्स का है. 1750 मार्क्स आते हैं उसमें. और मेंस इज बेसिकली आंसर राइटिंग. ओके, आंसर राइटिंग पे क्या स्पेशल फोकस आपने दिया? ओके, बिकॉज कुछ मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो ये मानते हैं कि आंसर राइटिंग का बड़ा रोल रहा है. देयर हैव बीन सम स्टूडेंट्स विथ गुड रैंक ऑल्सो जो कि कम आंसर राइटिंग के साथ भी उनका सिलेक्शन हो गया है. ओके, दैट मे बी बिट ऑफ लक और वॉट एवर. सो आप अपने आप को किस तरह के स्टूडेंट में कैटेगराइज करते हैं? आंसर राइटिंग ने आपके सिलेक्शन में क्या रोल प्ले किया? Sir, I think it has played the most pivotal role in my preparation. I feel जो बाकी दोनों stage of examination है, that is interview and the prelims, is somewhat luck based to a certain extent. It is. I just sorry to interrupt. I tell to the students also, prelims 2 घंटे का एग्जाम है जिसमें आपका सिलेक्शन रिजेक्शन लास्ट के 20 मिनट्स में डिसाइड हो रहा है कि कितने नेगेटिव मार्किंग आप कर रहे हैं. इंटरव्यू 25 मार्क्स का है. इट विल डिपेंड लॉट ऑफ लक. बोर्ड किसका है, जो मेंबर्स हैं किस टेम्परामेंट, मूड कैसा है, ठीक है. इफ देयर इज सम काइंड ऑफ बायसनेस और नॉट, क्योंकि आपका डैफ उनके सामने है एंड नोबडी कैन डिनाई कि बायसनेस हो सकता है. ह्यूमन फैक्टर तो रहता है. इट इज अ ह्यूमन फैक्टर. बट मेंस एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो इवैल्यूएटर आपके आंसर के थ्रू आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसके नहीं पता कि आप सेंट स्टीफन से हैं, आईआईटी से हैं या फिर किसी साधारण कॉलेज से हैं. ही इज नॉट नोइंग अबाउट योर सोशल आइडेंटिटी. एंड इन मेंस योर सिलेक्शन इज हैपनिंग बाय 9 पेपर्स, 9 into 3. यू हैव 27 hours ऑफ राइटिंग पे आपका एनालिसिस हो रहा है. दैट इज द रियल स्टेज जहाँ पे मेरिट की टेस्टिंग हो रही है. प्रीलिम्स में तो आप निकल सकते हैं, ठीक है. ऐसे भी हुए हैं कि लोग कट ऑफ के बराबर ही आया मार्क्स और वो क्रॉस कर गए. बट मेंस आपके रिगर को टेस्ट करता है, हार्डवर्क को टेस्ट करता है. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू सेड आई 100% अग्री दैट प्रीलिम्स, इंटरव्यू
लक बेस्ड हो सकता है बट नॉट द मेंस। सर मेंस में जैसे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे 770 स्कोर था, एंड द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक आई फेल्ट दैट आई मेड वाज प्रैक्टिसिंग टू लिटिल अ टेस्ट। मैंने मोस्टली एक या दो दिए थे, एंड दैट इज बिकॉज आई वाज डूइंग अलोंग विद माय ग्रेजुएशन। बट जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, मैंने सोच लिया कि मैं 75 टेस्ट दूंगा इस बार नेक्स्ट मेंस के पहले, एंड आई मेड श्योर दैट आई गिव देम। और मेरा स्कोर फिर 770 से इंक्रीज होकर 840 हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ सम लक आई बिलीव, बट बिकॉज आई वर्कड वेरी हार्ड। मेंस में लक नहीं काम करता है। मुझे अभी भी लगता है सर, आई वर्कड वेरी हार्ड टू गेट द मार्क्स दैट आई गॉट, और कंटिन्यूअस एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। आप इनिशियली बहुत शायद बेकार आंसर लिखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक महीने बाद आपके आंसर उतने ही गंदे रहे। तो आप रेगुलरली उसको सीखते रहते हो, एंड जस्ट टेक इट एज अ गेम। मैं तो उसको गेम की तरह रखा, आज मेरे इतने नंबर आए, कल मेरे से ऊपर आएंगे, आज मेरी इतनी रैंक है, मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दैट वाज माय एंटायर माइंडसेट फॉर द नेक्स्ट 1.5 years, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो आंसर राइटिंग गेम की तरह ट्रीट करना उसको, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इज डोंट बी रिजिड। मेंस में अगर आप बहुत रिजिड हो जाते हो कि नहीं मेरा ही तरीका सही है, तो यू लूज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो ऑलवेज हैव अ डाउट इन योर माइंड कि नहीं शायद इससे भी बेटर आंसर लिख सकते हैं, and then only you will be able to progress towards the right direction. That's true. And when you say this, I remember the same exact strategy was of Utkarsh Dwivedi also. Sir. And that reflected is in marks. He also gave 3 attempts. He gave interview in all 3 attempts. That means, but in neither of the attempt he took things for granted. बिल्कुल सर। Prelims में भी he used to practice some 70-75 test. Mains में भी he used to practice extensively. Even in the attempts wherein he was not selected, his score in PSIR was very good. So taking things not for granted, doing it, practicing, I think it makes brings that particular change in this. Any particular tips for the students with respect to GS2? Because as I told, he has 134 in GS2, which is one of the exceptional scores. Okay, so particularly with respect to GS2, आपकी क्या strategy रही? सर मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि ऑप्शनल अपना GS2 में मत लिखो, लेकिन मैंने इस बार किसी की नहीं सुनी। मैंने जो मुझे लगा सही है मैंने वही किया, एंड आई एक्सटेंसिवली यूज्ड द स्कॉलर्स नेम, the case studies that I used in general studies to in PSIR, quotes directly in my general studies 2 question. My only parameter of utilization was it should be aligned to the demand of the question. अब aligned, अगर वो demand of the question से aligned है, तो whatever you write, be it from optional, be it from any research scholar work, you could be writing that in the मेंस आंसर। मुझे लोग कहते थे कि सर जो जनरल स्टडीज के पेपर चेक कर रहे हैं, दे आर जनरलिस्ट इन नेचर, दे मस्ट नॉट बी नोइंग व्हाट इज आस्क्ड इन पेपर 2। आई फाउंड इट एज अ रिडिकुलस आर्गुमेंट, बिकॉज जो आप एग्जामिनर आपका चेक करें, दे हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अहेड ऑफ यू, एंड देयर इज नो वे दैट यू कैन आउटडू देम इन नॉलेज, क्योंकि वो रोज हर साल एग्जामिनेशन चेक कर रहे हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जामिनर कि शायद उनको इस बार कंटेंट की नॉलेज नहीं होगी। तो वॉट एवर बेस्ट नॉलेज यू हैव, बी इट फ्रॉम एनी सोर्स, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट, but just remain aligned to the demand of the question. The source is not important, information is. Information, right? Yes, Again, इस पे मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कुणाल, बिकॉज ये एक मिथ है, ओके, कि ऑप्शनल के नॉलेज को जीएस में नहीं यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग तो बोलते हैं एसए में भी नहीं यूज़ करना चाहिए, बट एसए में ऑप्शनल के नॉलेज को नहीं यूज़ करेंगे तो लिखेंगे कैसे, राइट? खासकर यदि PSIR जैसा हो। लेकिन GS2 में आपने कहा आपने स्कॉलर्स का नाम यूज़ किया, सो वर यू एज फोकस्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्कॉलर्स एज यूर इन PSIR? क्योंकि देखो जैसा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई वुड लाइक टू योर फीडबैक ऑन दिस, कुछ स्कॉलर्स हैं जो कि सभी जानते हैं, जैसे रजनी कोठारी को सभी जानते हैं, योगेंद्र यादव को सभी जानते हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो बहुत ही नीश होते हैं, मे बी अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, अ पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर विल नो। तो आपने जब स्कॉलर्स को आप यूज़ कर रहे थे, तो आपने ये कैटेगराइजेशन मेंटेन किया दिमाग में कि जो ज़्यादा नोन है उन्हीं को लिखा जाए, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन सभी जानते हैं, राइट? ग्रैनविल ऑस्टिन को, सो ऐसा क्या कोई कैटेगराइजेशन था, या फिर यू वर यूजिंग द स्कॉलर इन एज एक्सटेंसिव मैनर एज यू वर डूइंग इन PSIR? डेफिनेटली नॉट सर। आई थोड़ा सा आर्गुमेंट कि जो वेल नोन स्कॉलर्स है वो सब जानते हैं, वो यूज करने चाहिए। अब मेरा पैरामीटर कैसा था ये इस्टेब्लिश करना कि वेल नोन है कि नहीं। सबसे पहले न्यूज़पेपर्स, अगर न्यूज़पेपर्स में कोई स्कॉलर बार बार रिपीट हो, जैसे रजनी कोठारी सर है, काफी बार रिपीट होते हैं, चाहे प्रताप भानु मेहता सर का आर्टिकल है या कोई भी आर्टिकल है। दूसरा था सर GS4। अब GS4 में कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और जब आप कोट्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे तो काफी सारे कोट्स
स्कॉलर्स के नाम खुद यूपीएससी ने मेंशन कर रखे हैं, रॉल से क्वेश्चन जैसे हर बार आता है, तो मैं उनको तो एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ। तो मेरा फिल्टरिंग का प्रोसेस था कि पीएसआईआर की नॉलेज है, उसके नीचे 2 फिल्टर लगा दिए, एक न्यूज़पेपर का फिल्टर और एक जीएस फोल्ड का फिल्टर। फिर जो रेजिडुअल आपके स्कॉलर्स बचते हैं, दे कैन बी यूज्ड एक्सटेंसिवली। एक और मेरा फिल्टर था एम लक्ष्मीकांत। अब जैसे ग्रानविल ऑस्टिन, ये सारे स्कॉलर्स लक्ष्मीकांत ने मेंशन्ड है। तो ये 3 फिल्टर के बाद जो भी स्कॉलर्स बचे, दे कैन बी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन योर पेपर्स। So yeah, that's why so basically what Kunal is saying, first thing, optional के knowledge को बिल्कुल use कर सकते हैं जनरल स्टडीज में, ऐसा कोई कैटेगराइज अगेन मैकेनिकल कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करना है। सेकेंडली थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है व्हेन यू आर यूजिंग द पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर इन योर जीएस आंसर। GS4 एथिक्स में थोड़ा सा और वी कैन गो डेप्थ इनटू द स्कॉलर्स, क्योंकि वो पेपर वैसा डिमांड करता है। GS2 में वैसे स्कॉलर्स का यूज कर सकते हैं हु आर relatively known, and the filter also he told standard books like Lakshmikant and the Hindu newspaper और Indian Express newspaper जो वहाँ लिख रहे हैं, मेंशन हो रहे हैं, उसको आप सेफली यूज कर सकते हैं। टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एसे, एसे में फिलोसॉफिकल एसे हैं, टेक्निकल एसेज हैं, विच यू आर मोर कंफर्टेबल इन राइटिंग? Reason why I'm asking this, because you are engineer, so that that may point towards the fact कि आप technical answer essays लिखेंगे. You are also from PSIR now, optional. That shows कि हो सकता है आप ज़्यादा comfortable हो philosophical में. So which essay you are more comfortable? Sir, I think I'm comfortable in neither of them. First attempt I scored 101, and precisely because I misinterpreted one of the topics. अच्छा, तब से मेरा ऐसे का बहुत डर बैठ गया था कि मुझे लगा था कि इस बार भी कम होगा, लेकिन फॉर्चुनेटली आई स्कोर्ड वेल दिस टाइम, 129। और मेरे ख्याल से मेरा कोई एज सच कोई फोटे नहीं था कि ये बेटर है वो बेटर है, मुझे बस ऐसे का एग्जाम निकालना था। दैट वाज माय सोल इंटेंशन। आई डोंट इंटेंड टू बी अ राइटर and I don't have the necessary capacity or skills as well. बस मुझे ये था कि जो भी क्वेश्चन इस बार पूछ लिया जाए, मैं कुछ 100 ऐसे लिख के आ जाऊं ताकि मेरे को मार्क्स मिल जाए, बस दैट वाज माय इंटायर इंटेंशन। उसके लिए मैंने फिलोसफिकल एसेस भी प्रैक्टिस किए और मैकेनिकल एसेस भी प्रैक्टिस किए, और मेरे ख्याल से प्रैक्टिस ही नंबर लेके आए। अभी भी आप मेरा कोई राइटअप देख लेंगे, कोई बहुत खास नहीं होगा, बट मैंने स्ट्रक्चरिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया कि स्ट्रक्चर कम से कम ठीक लगे, तो जो मेरी नेगेटिविटीज है फ्लेयर में, वो शायद मैं अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर से ओवरकम कर पाऊँ। और फॉर्चुनेटली इट वर्क फॉर मी दिस टाइम। बट देन ऑल्सो अब यूसी की कोई भी राइटअप बहुत खास नहीं लगेगा, बट 129 इन एसे इज अ वेरी गुड स्कोर, और जब रैंक 15 है तो फिर आई थिंक यू शुड नॉट से दिस। पॉलिटिकल साइंस, what was the rationale behind selecting this? So to be honest, syllabus overlap was the biggest Syllabus overlap, yes. because I was doing it along with my graduation, so I did not have time. So PSR seemed to be a natural choice. Somewhat also interest, sir, because I liked reading on analyzing geopolitics, particularly, and international relations was a big part of PSIR. So I felt since I have an interest as well as there is a definite advantage, why not take this as a subject? And as we were discussing, PSIR as an optional for civil services has worked well with BITS Pilani students. Sir. And I gave the example, Anmol Sher Singh Bedi, your senior, rank 2. In prelims, the cutoff that year was 116. He got 116. Sir. And he got rank 2. Right. And he was in the current batch of PSIR. That means a section of his PSIR syllabus was completed after prelims, completed after prelims. Okay, sir. And he crossed this barrier in the first attempt itself. Ananya Das, one of your senior, ranked 16. Okay, she also that year, if I remember right, it was 2014 exam, and she topped in PSIR. Okay, sir. She was from computer science background from BITS Pilani. She topped this examination. She also had some 310 plus marks, sir. and more marks were in, I believe, in second paper. She then started again from BITS Pilani. So somehow ranked 43 last year. Shubham Shukla. He has changed from chemistry optional to PSIR. So somehow it has been working. This year also there have been selections from BITS Pilani. So it has worked well with you. So I'm glad about that particular thing. प्रीलिम्स की तरफ आते हैं कुणाल, और उसमें भी बात करते हैं CSAT की। सर, आप इंजीनियर हैं, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ सर, CSAT की वजह से नहीं हुआ, 1 मार्क से छूट गया। बिल्कुल सर। कैसे सिंक इन किया ये रियलिटी?
सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ था। एक मार्क तो मुझे एक साल बाद पता चला, लेकिन जिस दिन मैं एग्जामिनेशन देके आ गया था मेरे को फील आ गई थी कि शायद इस बार नहीं होगा। सीसेट की वजह से नहीं हुई, ये फील आ गई हाँ थी? ये फील आ गई थी सर। मैंने फर्स्ट का कैलकुलेट कर लिया था, आई वाज गेटिंग अराउंड 106 मार्क्स और एक्चुअली में 103 आए, तो आई वाज श्योर उसमें। तो सर सीसैट का तो मुझे ये था कि मेरा शायद ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को ले डूबा। मैंने जीएस में क्रॉस हो रहा था कट ऑफ? हाँ सर, जीएस में कट ऑफ मेरे 106 मैंने कैलकुलेट किया तो 103 आए थे, प्रिसाइजली बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज और मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह कंटिन्यूअसली रीड कर रहा था एंड परहैप्स द accumulated knowledge helped me in clearing my GS answers. What happened with CSAT I don't know, मैंने कभी पढ़ा नहीं था उससे पहले। फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया था तो क्लियर हो गया था, तो मुझे लगा सेकंड अटेम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, सो आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन और यूपीएससी ने फिर बाउंसर फेंका और मैं आउट हो गया। आउट नहीं, हिट विकेट हुए। सीसेट में यदि कोई बाहर निकलता है तो इट्स लाइक हिट विकेट, अभी तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। हाँ सर, सीसेट की वजह से कोई जाए या फिर मेंस में क्वालिफाइंग पेपर्स की वजह से जाए, सो फिर बिकॉज रेस्ट ऑफ द पेपर्स आर नॉट डन चेक्ड। बिल्कुल क्वालिफाइंग एग्जाम है ना ये। I remember there was rank 57, I believe. He failed in the language paper, English language paper, and more importantly, he during his college days he used to write in newspapers. So ऐसा नहीं था कि English language खराब थी. So Akshat something, I'm forgetting the second name. So that's why you cannot, you should not take them for granted, I believe. So I feel that यूपीएससी में आप जब ये सोचते हैं कि आप यूपीएससी से ऊपर है, इट फाइंड्स अ वे टू पुट यू डाउन। और मुझे एक सर बोलते थे कि यूपीएससी डज नॉट थ्रो ब्रिक एट यू, इट थ्रोज बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स एट यू। तो मुझे तो बॉम्ब लग गया। तो आप लोग प्लीज सीसैट प्रिपेयर करिए ताकि आपको ना लगे। Murphy's law, if anything can go bad, it will go bad. It will go bad. It is the thing. With respect to prelims, the general studies part, आपने 3 prelims दिया. What used to be your strategy with respect to prelims, particularly if I have to ask a niche question? Again, solving the previous year question, solving the test papers. सर टेस्ट पेपर्स आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्रीलिम्स। नॉलेज पार्ट तो आप मेंस के प्रिपरेशन से निकाल सकते हो, लेकिन उस नॉलेज को अलाइन करना होगा आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के साथ। देयर यू रिक्वायर द यूज ऑफ टेस्ट पेपर्स। तो मैं टेस्ट पेपर्स एक्सटेंसिवली लिखता था। इसके अलावा पीवाईक्यू एनालिसिस भी मैं बहुत करता था, नॉट ओनली फॉर नॉलेज बट ऑल्सो फॉर द एडुकेटेड गेसिंग गेम, जो प्रीलिम्स में 20-25 क्वेश्चन में होता है। एंड तीसरा सर मेरे ख्याल से आप जब टेस्ट बहुत ज़्यादा देते हो तो आपको एक पता चल जाता है कि ये कंफर्टेबल नंबर है आपका, जिसके अराउंड आपको खेलना है। तो ये 3 मेरे ख्याल से चीज़ें मैं करता था प्रीलिम्स में, और फॉर्चुनेटली तीनों टाइम प्रीलिम्स हो गया था मेरा। अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है, बिकॉज आपको ये पता चलता है कि आउट ऑफ द गेस वर्क दैट यू आर गोइंग टू डू कितना आपके फेवर में जा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेज दैट आप यदि 50% आपको पता है क्वेश्चन, आउट ऑफ द 2 इफ यू आर टिकिंग ऑन 1, सो चांसेस है कि कुछ पॉजिटिव मार्क्स आएंगे, बट वो कितना पॉजिटिव होगा दैट यू गेट टू नो ओनली इफ यू डू द मॉक्स। टिपिकली कितने दिन पहले प्रीलिम्स की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए? सर मुझे लगता है 90 डेज। 90 डेज मेरा गोल्डन मंत्रा था। तीनों अटेम्प्ट में मैंने 90 डेज पहले आई कंप्लीटली शिफ्टेड माय फोकस टुवर्ड्स प्रीलिम्स एग्जाम। 3 months पहले। 3 months। ठीक है। Changing pattern of prelims, cutoff going down, 75 is where cutoff. What do you have to say on that? Sir, I feel that UPSC is trying to equalize CSAT and वो दोनों का 66 कर देंगे शायद। I think one needs to evolve with the evolving pattern of prelims. I think now it is not much. पहले लगता था कि फैक्ट बेस्ड शायद यूपीएससी नहीं पूछता, लेकिन लास्ट ईयर वो पूछने लगा है। लास्ट ईयर स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन थे, 2021 में भी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन थे, कुछ एकदम एग्जैक्ट ट्रेड डेटा पे क्वेश्चन थे जो यूपीएससी जनरली गलत नहीं पूछता। तो आई थिंक इट हैज नाउ बिकम अ गेम ऑफ बोथ फैक्ट्स एज वेल एज योर विजडम, एंड दैट मेक्स द पेपर मोर डिफिकल्ट। सो वन नीड्स टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, एंड बेटर प्रिपरेशन ओनली कम्स इफ यू प्रैक्टिस मोर टेस्ट हैविंग सिमिलर पैटर्न as well as also broaden your knowledge depending upon the demand of the paper hai. So I feel prelims is becoming very tough now. Which newspaper you used to read? Sir मैं दोनों न्यूज़पेपर पढ़ता था, but it depends. दो कर लेते मतलब every day 2 newspaper? No sir, तो Monday to Saturday I used to read Express। ठीक है, क्योंकि उसमें सर एक्सपीरियंस सेक्शन वगैरह काफी अच्छा आता है, एंड जो उसके ऑपेड्स हैं वो मच मोर बैलेंस्ड है कंपेयर्ड टू अदर न्यूज़पेपर्स। और जो हिंदू है वो मैं संडे को पढ़ता था बिकॉज ऑफ 4 उसके बहुत अच्छे सेक्शंस आते हैं, प्रोफाइल, एफएक्यू, साइंस, और शायद एक और कोई है सर मैं भी भूल रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट वाला क्या? एक कॉन्टेक्स्ट करके वो सर वो तो टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वो सर रोज आता है, वो तो रेगुलर में आता था। ये 4
ख्याल से प्रोफाइल, FAQ, स्टूडेंट साइंस है और एक और कोई है, आप प्लीज देख लीजिएगा। लेकिन ये चारों बहुत ब्यूटीफुली रिटन होते थे। और संडे को एक्सप्रेस बॉलीवुड के कुछ कुछ आर्टिकल्स लगाता है, तो इट बिकम्स अननेसेसरी। तो मंडे टू सैटरडे आप एक्सप्रेस पढ़िए, संडे टू यू रीड एक्सक्लूसिवली हिंदी। दिस इज अ वेरी यूनिक स्ट्रेटजी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज़पेपर। जनरली लोग आइदर हिंदू या फिर एक्सप्रेस बोलते हैं ना। कुणाल इज सजेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट दैट इज कमिंग, एंड दैट इज अ very objective way of reading the newspaper. Monday to Saturday you go for Indian Express, and Sunday edition of Hindu is better than Indian Express, so you can go for this. So this is something you can note down. What was the reaction in the family when you got this news, rank 15? सर इट वॉज फार बियॉन्ड वॉट आई इमेजिन्ड। हाँ, मुझे जो बेस्ट केस सिनेरियो अपना लग रहा था कि लास्ट टाइम मेरे 770 थे, आई मस्ट हैव इंक्रीज 30 मार्क्स, 800 के आसपास पहुंच गया होगा, एंड इंटरव्यूज शायद 170 180 आ गए होंगे, अपर रेंज। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ 980 985 which gives me around 100 150। लेकिन तो मैंने अपने दोस्तों को भी बोल दिया था कि मेरे को प्लीज मत फोन करना अगर गंदी रैंक आए। तो मैंने अपना खोलना शुरू किया, एंड फॉर्चुनेटली सम पीपल कॉल्ड, सो आई न्यू कि कुछ तो अच्छा है, तभी दे कॉल्ड, एंड सो आई क्विकली स्टार्ट टू स्क्रॉल डाउन। बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ा होगा। नहीं सर, नीचे क्या, मैंने जहां उंगली रखी वहीं पर ही नाम फॉर्चुनेटली आ गया। तो दैट वाज अ सरियल एक्सपीरियंस। माय फादर वाज नॉट देयर विद मी, ही वाज ऑन इलेक्शन ड्यूटी इन वेस्ट बंगाल, बट माय मदर वाज देयर। तो मैंने उनको बताया, शी डिडंट बिलीव मी। उन्होंने बोला रोल नंबर बताओ क्या है, तो फिर मैंने रोल नंबर बताया। फिर जब तक उनके फोन पे नहीं खुल गया वो, तब तक उन्होंने नहीं माना, एंड वंस शी वेरीफाइड, then the tears started coming from both our sides. That's absolutely true. Rank 83 was here with us. She is also our student, and I also asked this question to her. One common response that I get, that everybody cries after getting such a good rank. Rank 83. It was her 7th attempt, Okay, and sir. 6th attempt, no prelims. Okay, And out sir. of these 6 prelims, 3 prelims because of CSAT she failed. Plan. So after that, if rank 83 is coming, So- you can understand that how relaxing that must be. Just to tell to the students, Kunal's dad, he is also in Indian Police Service. He's a 95 batch IPS officer. So what was the inspiration? When did you first thought about civil services? Because you have grown in a family background wherein you must have seen bureaucrats. There was a constant interaction. So compared to other students, maybe you know service better than those who don't have an interface to that. And when you come to know about the service, you come to know about good things also. You come to know about the challenges also. And why I'm asking this question particularly to you, because the rationale behind selecting civil services of yours must have been much more objective, because आपने positive negative challenges future prospects सब देखा है उसमें, तो क्या rationale था? So civil services was always a thing that constantly pricked my mind, but I never made up my mind until I reached my college days. In my college days, sir, I had a very well option of going into the corporate sector, but I got a feel of it, and I was not very satisfied with the experience that I had. You did work for some So I time? did an internship. Acha, okay. And apart from that, sir, also I was associated with National Service Scheme in my college days, and there the happiness that I felt in seeing happiness in others due to my actions, I think that was something which is indescribable. So after that, my confused thoughts become a clarity and conviction that I wanted to pursue this as my life career, and so I also decided not to sit for placements in my college, and I directly jumped into the civil services. Because this is one of the most important factor which will keep you that will motivate you even in the toughest of the situations. तो ज़रूरी होता है कि ये पता रहे कि सर्विस के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं. बिल्कुल तो सर. वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए. एंड यू हैव completed this journey in a very handsome manner. Rank 15 से ज़्यादा क्या ही expect करेंगे. ठीक है. And of course you're going to get the service of your choice. IAS आपने पढ़ा है. Which cadre you are expecting? अभी तो आया नहीं होगा, but So most probably depending based upon the previous years, I'll get into UP cadre. That was my first preference. which was your first preference, and I'm sure getting your name in the PDF of UPSC must have been the most pleasant thing.
when you are describing कि कैसे आपने देखा PDF आने के बाद नाम से मैच किया, there was one IRS officer, she was selected I think some 8 years back, and she was sharing the moment when result came, and she opened the PDF and with a very lightning speed she typed her roll number, and she told that the PDF was not yet completely opened. Right. Okay. And it showed 0 out of 0. Okay, sir. होता है ना, पहले 1 0 आप डालते हैं तो 15 0 out of 0. She started crying. Okay. But her mother then she had some faith कि selection हो जाएगा. उन्होंने किया, PDF complete downloaded था, तब सर्च किया तो she was able to. इसलिए सर मैं सर्च नहीं करता, मैं सीधे स्क्रॉल करता हूँ. एक तो ये रैशनल है, बहुत लोगों को हिम्मत नहीं होता है सर्च करने की. नहीं सर, वो एक किक मिलती है मेरे को. किक भी मिलती है कि द नेक्स्ट वन ऑफ कोर्स इंटरव्यू के बाद वाले फाइनल रिजल्ट्स में आप वो कर सकते हैं. नहीं सर, मैं तो मेंस और प्रीलिम्स में भी किया था. वो पूरा सर ऑर्डर में होता है. तो फिर मैं तो सीधे उसी पेज पे चला जाता था. आई नेवर बिलीव्ड इन यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर सर्चिंग द रिजल्ट, बिकॉज वो ज्यादा नर्व रैकिंग है, और गलती से कंप्यूटर ने कुछ गलत कर दिया तो मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा. तो इसलिए अवॉइड करने के लिए मैं स्क्रॉल डाउन नहीं कर देता हूँ. चलो, thank you Kunal for giving your time, and I'm sure students are going to benefit a lot from what you have said, and we have also shared your copies with the students so that because that is the most legitimate document that aspirants have, and they look at you as a role model. They are going to learn a lot from you, because UPSC, the examination process is such an opaque process that the aspirants, they fail to understand that what actually is the demand of the UPSC, if at all there's a demand. Sir, I think even after clearing the examination, getting to know what UPSC actually demands is something still out of my work. I think nobody will ever understand what the UPSC wants. That's true. But That's true. You can make a strategy based upon the toppers thing. Sometimes it works, sometimes it doesn't. And so you have to realign yourself. It can give you some indication that this is the direction that you need to go. I suggest to the student that you write answer, the same answer you write that the topper has written, and you see that how far you are from that. Of course. Also one thing, sir, I will wholeheartedly suggest not to blindly copy. No, the toppers. Just indications. You can take the indications, but please infuse your originality to whatever thing you are writing, be it in your mains, be it in your prelims, or in the interview stage. Even in the interview. जहाँ तक आप अपने ओरिजिनलिटी यूज कर सकते हैं उतना आप बेटर चांसेस हैं, बिकॉज इवन इफ यू देन फेल you will be satisfied कि ठीक है मेरा ओरिजिनल था, I failed, it doesn't matter. If you are trying to copy somebody and then you fail, then it becomes double depressing. You'll have this guilt that you did not try your strategy. So that's so true, Kunal. Thank you again, Kunal, for this, and I hope you join the service very soon and serve your nation. Thank you so much.